Hello students and welcome back. So we are studying unit number 3, that is paints, varnishes, lubricants, adhesives, polymers. Okay, so this unit number 3 for polytechnic students actually we are studying, and we are studying this in the bunch of 20 MCQs, so that each and every MCQ that I explain, each and every student should understand very well. So here it is MCQ number 1, rather it is MCQ number 21st. So MCQ is epoxy resin is prepared from. So epoxy resin, we know that it is an adhesive. Adhesive means it is the substance that binds or sticks two surfaces together. So that particular substance is called as adhesive. We know that, and here four options as usual these are given. So number A option is epichlorohydrin and bisphenol. Number B is epichlorohydrin and phenol. C bisphenol and phenol. D epichlorohydrin and formaldehyde. So the correct answer here is number A, that is epichlorohydrin and bisphenol. We know that by using these two monomers we prepare epoxy resin adhesive. Okay, so epichlorohydrin and bisphenol, that is option number A, it is correct answer here. Okay, which is correct answer here? That is option number A. Option number A, it is the correct answer here. So just I will underline it, option number A. So here it is, this is the correct option. Then after that, let us see MCQ number 22. So what is MCQ number 22? It is thermosetting synthetic adhesive is. Thermosetting synthetic adhesive. Now thermosetting adhesive means these are the adhesives, once they are given heat, so they become hard and rigid. So those actually uh, means adhesives, and they are also synthetic, means that this means that they are prepared in the laboratory. So what is the example of thermosetting synthetic adhesives from the four given options? So option number A is starch, B is phenol formaldehyde resin, C asphalt, and D shellac resin. So these are the four options. So here option number B, phenol formaldehyde resin, it is correct here. Phenol formaldehyde resin, this option is correct because it is synthetic adhesive which is prepared in the laboratory, and obviously it is the thermostatic synthetic adhesive. So option number B, phenol formaldehyde resin, it is the correct option here for MCQ number 22. Then after that, MCQ number 23, in adhesive bonding, which one of the following is the term used for parts that are joined? तो ये क्वेश्चन को समझिए, एडेसिव बॉन्डिंग जो है इसमें एक्चुअली कौन सी ऐसी टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं कि जो दो पार्ट्स है एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट हो चुके हैं, तो ऐसी कौन सी टर्म वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कि दो पार्ट जो ज्वाइन हो चुके हैं तो उनके लिए कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? सो ऑप्शन नंबर ए इज़ adhered, number B is adherent, C is adhesive, and D is infinitum. Okay, so these are the four options here. So I think option number B, adherent, it is the correct option, because where we apply that adhesive, that surface is called as adherent, and these adherent surfaces actually they get joined together with each other, and it is because of that adhesive bonding because of which two surfaces get joined together. So here option number B, adherent, it is correct answer here for MCQ number 23. Okay, then after that, what is MCQ number 24? MCQ number 24 is the polymer. MCQ number 24 is the polymer which can be used as synthetic adhesive is. तो देखिए ये यहाँ पर सिंथेटिक एडिजिव कौन सा है, ये हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो चार ऑप्शंस फिर से यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर ए ऑप्शन इज़ नियोप्रीन, बी इज़ बुन्नायस, सी इज़ इपॉक्सी रेजिन, एंड डी इज़ पॉलीस्टायरिन। तो ये चारों में से कौन सा ऐसा सिंथेटिक एडेजिव है? सिंथेटिक एडेजिव मीन्स दिस इज़ मैन मेड एडेजिव, so here which can be used as synthetic adhesive. So out of those four options, option number C, epoxy resin,
it is the correct answer here, because epoxy resin, it is the synthetic adhesive here. Neoprene, Bunna S, polystyrene, actually these are not the examples of adhesive. So option number C, epoxy resin, it is adhesive, and it is only the correct option here for MCQ number 24. Epoxy resin, it is the answer. Then after that, MCQ number 25, the purpose of lubrication is, lubrication, we know that it is the process by which the friction between the two sliding surfaces, it is reduced, so that the wear and tear of those parts, it can be also avoided. Okay, so that is the purpose of lubrication. So in the definition only, I think you came to know for what purpose actually we do lubrication process. So options are number A, to reduce friction, B, to reduce wear, C, to reduce corrosion, and D, all of the above. So according to definition that just now we have studied, obviously means option number D, it will be correct here, because with the help of lubrication process, actually means we reduce friction, we reduce wear and tear, then after that also we avoid or we reduce corrosion of that metal. So all the options here are correct. So option number D, it is correct option here or answer here, that is all of the above for MCQ number 25. Then after that, next MCQ is MCQ number 26. So let us see what is that. So which one is not an example of solid lubricant? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा एक सॉलिड लुब्रिकेंट है जो कि ये लुब्रिकेंट है जो कि सॉलिड लुब्रिकेंट का एग्जांपल नहीं है, जो सॉलिड लुब्रिकेंट नहीं है? सो ऑप्शन नंबर ए इज़ ग्राफाइट लुब्रिकेंट, बी मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड, सी पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, या डी मल्टीग्रेड। तो देखिए ग्राफाइट लुब्रिकेंट ये सॉलिड लुब्रिकेंट का एग्जांपल है, बी मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड यह भी सॉलिड लुब्रिकेंट का एग्जांपल है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन ये सॉलिड लुब्रिकेंट का एग्जांपल नहीं है। तो डेफिनेटली सी ऑप्शन, इट इज़ करेक्ट ऑप्शन हियर, दैट इज़ पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, it is not the example of solid lubricant, and D multigrade, it is also solid lubricant. So option number C, it is correct for MCQ number 26. Let us see now MCQ number 27. So apart from reducing friction and wear, the secondary purpose of lubricant is, यानी कि जो लुब्रिकेशन प्रोसेस की वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, वियर एंड टीयर यानी कि सरफेस का ख़राब होना कम होता है। तो और भी इसका सेकेंडरी पर्पस क्या हो सकता है लुब्रिकेशन प्रोसेस का? नंबर ए, हीट डिसिपेशन होता है क्या? बी, रिड्यूसिंग करोजन, वो तो हमें पता है, या सी बोथ ए एंड बी है, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो हीट डिसिपेशन भी एक्चुअली जो लुब्रिकेशन प्रोसेस है उसका पर्पस होता है, क्योंकि जब दो मेटल सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, तो वहाँ पर हीट जनरेट होती है। तो उस हीट को डिसिपेट करने के लिए एक्चुअली लुब्रिकेटिंग ऑयल बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर काम करता है। जो हीट जनरेट होती है उसको एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और इस तरह से वहाँ पर जो मेटेलिक सरफेसेस है हीट उनके बीच में क्रिएट नहीं होगी और उस हीट का उसके ऊपर कोई परिणाम नहीं होगा। सो नंबर ए, हीट डिसिपेशन, यह भी करेक्ट है, और बी, रिड्यूसिंग करोजन, यह भी करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ करेक्ट ऑप्शन, और डी नन ऑफ दिस, ये तो एकदम गलत आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर सी MCQ नंबर 27 के लिए करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। ओके, then after that MCQ number 28, for rocket and submarine the lubricant used is, यानी कि जो रॉकेट्स होते हैं उनके अंदर और जो सबमराइन जितने भी शिप्स होते हैं, जहाज़ होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है? सो ऑप्शन नंबर ए, एनिमल ऑयल, इसका तो यूज़ नहीं किया जा सकता है बिल्कुल भी। वेजिटेबल ऑयल का भी यूज़ नहीं किया जा सकता है, खोबरे का तेल वहाँ पर क्या काम करेगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट नंबर ऑप्शन नंबर सी, मिनरल ऑयल,
इसका भी यूज़ नहीं होता है. नंबर डी सिंथेटिक ऑयल. सो सिंथेटिक ऑयल it can be used in the rockets and submarine as the lubricant. So that's why option number D, synthetic oil, it is correct option here, synthetic oil. So this is the correct option, synthetic oil, right? So then after that, let us see MCQ number 29. So MCQ number 29 is the type of lubricant used for cutting tools is, जो कटिंग टूल होते हैं जो कि प्री डिज़ायर्ड शेप देते हैं मेटेलिक शीट्स को. कटिंग टूल्स जैसे कि सॉज होते हैं, फाइल्स होते हैं, ठीक है, ये सारे सीजर्स होते हैं, कटर्स जिनको हम कहते हैं, विच आर कॉल्ड एज कटिंग टूल्स. तो इनको चलाने के लिए कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ किया जा सकता है? सो ऑप्शन नंबर ए सॉलिड लुब्रिकेंट, ये तो नहीं लगा सकते हम कटिंग टूल्स के ऊपर, उनकी जो तेज़ धार होती है उनको चलाने के लिए, ये तो नहीं, सॉलिड लुब्रिकेंट तो यूज़ नहीं किया जा सकता है. नंबर बी लिक्विड लुब्रिकेंट हम लगाते हैं डेफिनेटली कटिंग टूल्स में ताकि वो अच्छी तरह से काम करें. ऑप्शन नंबर सी सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, ये भी गलत आंसर है. डी ऑल ऑफ द अबव, ये तो और भी ज़्यादा गलत आंसर है. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ liquid lubricant. So this is the correct answer here, liquid lubricant, okay, for MCQ number 29. Then after that, let us see MCQ number 30. What is MCQ number 30? Solid lubricant is used for. तो सॉलिड लुब्रिकेंट जो होते हैं उसका इस्तेमाल, उसका यूज़ कहाँ पर होता है? नंबर ए कटिंग टूल्स में यूज़ होते हैं क्या? अभी हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं. नंबर बी स्टीम टरबाइन में यूज़ होते हैं क्या? हाँ, यहाँ पर हो सकते हैं यूज़ स्टीम टरबाइन में, देखते हैं. नंबर सी सेविंग मशीन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते हैं, कपड़े सिलाई वाली मशीन में. और डी गन पार्ट्स में भी बिल्कुल यूज़ नहीं होते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट. सो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी स्टीम टरबाइन में सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज़ होता है. सॉलिड लुब्रिकेंट ही वहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं. बड़े बड़े मशीनरी पार्ट्स होते हैं, टरबाइंस होते हैं, स्टीम टरबाइंस, तो वहाँ पर सॉलिड लुब्रिकेंट का ही एज अ लुब्रिकेंट यूज़ होता है. सो ऑप्शन नंबर बी इट इज़ करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQ नंबर 30. Then after that MCQ number 31, oiliness is the property of lubricant. तो ऑयलीनेस जो होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑयल का, तो उस ऑयलीनेस की प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर लुब्रिकेंट की जो ऑयलीनेस प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? नंबर ए एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस, क्या वो सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है? ऑयलीनेस एक्चुअली अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो ऑयलीनेस प्रॉपर्टी तो रहेगी नहीं वहाँ पर. नंबर बी एड्जॉर्ब ऑन सरफेस, ये हो सकता है क्योंकि ऑयलीनेस प्रॉपर्टी तभी होगी जबकि वो जो लुब्रिकेंट है सरफेस के ऊपर अच्छी तरह से चिपक करके बैठे और एब्जॉर्ब ना हो, एड्जॉर्ब हो, उसी सरफेस के ऊपर अच्छी तरह से चिपक करके बैठे और जल्द वहाँ पर से इवापोरेट भी ना हो. ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी ये यहाँ पर करेक्ट आंसर लगता है. आगे देखते हैं. ऑप्शन नंबर सी इज़ मिक्सड विद द सरफेस के साथ में मिक्स नहीं होना चाहिए एक्चुअली लुब्रिकेंट ने, उसका कोई यहाँ पर उस तरह से पर्टिकुलर पर्पस नहीं होता है मिक्स होने का. देन ऑफ दैट ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, ये तो नहीं है. सो ऑप्शन नंबर बी एडजॉर्ब ऑन द सरफेस, ये करेक्ट ऑप्शन है MCQ नंबर 31, जो कि है ऑयलीनेस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट. ऑयलीनेस प्रॉपर्टी कब होती है लुब्रिकेंट की? जबकि वो अच्छी तरह से एडजॉर्ब हो जाता है उस सरफेस के ऊपर लगाने के बाद में. जैसे हम चॉक से लिखते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो जो चॉक है जहाँ पर भी हम लिख रहे हैं, जो भी लेटर्स लिख रहे हैं, उन लेटर्स में एडजॉर्ब हो जाता है. जो भी लिखावट दिखती है एक्चुअली वो एड्जॉर्प्शन की वजह से दिखती है. चॉक जो होता है उसके पार्टिकल्स की एड्जॉर्प्शन की वजह से दिखती है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, एड्जॉर्ब होता है. यानी कि ये सरफेस डेफिनेशन है, सरफेस फिनोमिनॉन है, सरफेस के ऊपर ही होती है एड्जॉर्प्शन. और एब्जॉर्प्शन ये बल्क फिनोमिनॉन है. जैसे कि कोई स्पंज लिया और उसको वाटर के अंदर हमने डुबो दिया तो वाटर सीधा अंदर घुस जाता है स्पंज के, सो दैट इज़ बल्क फिनोमिनॉन. और ये एड्जॉर्प्शन यानी कि चॉक पीस से ब्लैक बोर्ड के ऊपर जैसे लिखते हैं उसी तरह से लुब्रिकेटिंग ऑयल एक्चुअली जब हम लगाते हैं मेटेलिक सरफेसेस के ऊपर तो उस मेटल के सरफेस के ऊपर अच्छी तरह से चिपक करके बैठ जाता है, वही उसका ऑयलीनेस प्रॉपर्टी होता है, वही पर्पज़ होता है उसका. सो हियर करेक्ट ऑप्शन
is what? Number B, adsorb on the surface. So this is the correct option for MCQ number 31. Then after MCQ number 32, what is this? Which of the following is not true for lubricants? तो नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शंस है इनमें से कोई एक सही नहीं है लुब्रिकेंट्स के लिए. सो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए, अ गुड लुब्रिकेंट शुड हैव हाई मैकेनिकल स्टेबिलिटी. ये तो करेक्ट है भाई. ये अच्छा लुब्रिकेंट जो है मैकेनिकल स्टेबिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा घिसे जाते हैं मेटेलिक पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर. तो एक्चुअली लुब्रिकेंट के अंदर बहुत अच्छी हाई मैकेनिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए. नंबर बी, गुड लुब्रिकेंट शुड हैव लो वोलेटिलिटी. ये तो है. लुब्रिकेंट जो है लगा दिया मेटल सरफेस के ऊपर जो एक दूसरे के ऊपर घिस रहे हैं, दे आर स्लाइडिंग और अपॉन ईच अदर मेटेलिक सरफेसेस, और वो कुछ समय के बाद में ही एक्चुअली वहाँ पर से वेपराइज हो जा रहे हैं. तो वहाँ पर उस लुब्रिकेटिंग ऑयल का लगाने का कोई मकसद नहीं रहेगा. सो जो वोलेटिलिटी होती है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल की बहुत कम होनी चाहिए. हम उसको अच्छा लुब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं या लुब्रिकेंट कहते हैं. नंबर सी, यानी कि ये भी बराबर है. नंबर सी, अ गुड लुब्रिकेंट शुड फॉर्म स्टेबल इमल्शन विथ वाटर. ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत लग रहा है. लुब्रिकेशन के लिए, लुब्रिकेंट के लिए जो लुब्रिकेंट होता है उसने इमल्शन वाटर के साथ में वहाँ पर अगर अवेलेबल हो मॉइस्चर वाटर, उसके साथ में इमल्शन फॉर्म नहीं करना चाहिए, वरना उसकी जो प्रॉपर्टी है लुब्रिकेटिंग ऑयल की वो चेंज हो सकती है, वो इमल्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. इमल्शन यानी कि लिक्विड, एक्चुअली लिक्विड ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट इनटू अनदर लिक्विड सॉल्वेंट. ओके, जैसे कि फैट्स होते हैं, पार्टिकल्स फैट्स के जो लिक्विड होता है मिल्क के अंदर. सो मिल्क इट इज़ इमल्शन सॉल्यूशन यू कैन से. तो एक्चुअली इमल्शन सॉल्यूशन वहाँ पर वाटर के साथ में कंबाइन होने के बाद में लुब्रिकेंट ने नहीं तैयार करना चाहिए. तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लुब्रिकेंट के प्रॉपर्टी के लिए ठीक नहीं है. सो ऑप्शन नंबर सी मुझे लगता है यही करेक्ट आंसर है. ऑप्शन नंबर डी, गुड लुब्रिकेंट शुड हैव हाई विस्कोसिटी इंडेक्स. तो लुब्रिकेंट का विस्कोसिटी इंडेक्स तो हाई होना ही चाहिए, है ना. विस्कोसिटी इंडेक्स यानी कि क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका असर विस्कोसिटी के ऊपर अगर पड़े तो उसको हम विस्कोसिटी इंडेक्स कहते हैं. तो विस्कोसिटी इंडेक्स अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए. टेम्परेचर का, बढ़ते हुए टेम्परेचर का उस लुब्रिकेटिंग ऑयल के विस्कोसिटी के ऊपर कोई परिणाम नहीं होना चाहिए, वरना विस्कोसिटी बढ़ते टेम्परेचर के साथ में अगर बदल रही हैं तो वहाँ पर जिस विस्कोसिटी का हम लुब्रिकेटिंग ऑयल लगाने जा रहे हैं वो पर्पज़ फुलफिल नहीं होता है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अ गुड लुब्रिकेंट शुड फॉर्म स्टेबल इमल्शन विथ वाटर. इट इज़ नॉट ट्रू फॉर लुब्रिकेंट. अ गुड लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट ने इमल्शन वाटर के साथ में मॉइस्चर अगर वहाँ पर प्रेजेंट होगा तो उसके साथ में इमल्शन नहीं बनाना चाहिए. तो ये अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है. दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर लुब्रिकेंट्स. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ अ गुड लुब्रिकेंट शुड फॉर्म स्टेबल इमल्शन विथ वाटर. इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQ नंबर 32. कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है. इमल्शन फॉर्म नहीं होना चाहिए. देन आफ्टर दैट MCQ number 33, the temperature at which oil ceases to flow from on a machinery part is called. So it is definition, I think you have studied in the 3rd chapter. It is very easy definition. Okay, the temperature at which oil ceases to flow from machinery part is called. नंबर ए, फ्लैश पॉइंट. फ्लैश पॉइंट तो मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पर फ्लैशेस आते हैं. बी, क्लाउड पॉइंट, यहाँ पर वो सीज हो जाता है. इसके विपरीत MCQ है, ये भी नहीं है. सी, पावर पॉइंट. हाँ, पावर पॉइंट की हमें पता है ये डेफिनेशन पावर पॉइंट की है. सो ऑप्शन नंबर सी ये तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर. ऑप्शन नंबर डी, फायर पॉइंट, ये भी नहीं है, क्योंकि फायर पॉइंट यानी कि ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पर कि इनफ वेपर्स देता है ऑयल, और उसके पास में अगर कोई टाइनी फ्लेम ऑफ फायर हम लाते हैं सो इट कैचेस दैट फायर एंड इट बर्न्स एटलीस्ट फॉर 5 seconds. सो दैट इज़ फायर पॉइंट. तो ऑप्शन नंबर सी, पावर पॉइंट, यही यहाँ पर करेक्ट आंसर है. पावर पॉइंट की ये डेफिनेशन है जो कि MCQ के फॉर्म में यहाँ पर दी गई है. द टेम्परेचर एट विच ऑयल सीजेस टू फ्लो फ्रॉम मशीनरी पार्ट इज कॉल्ड एज सी, पावर पॉइंट. यानी कि जो ऑयल होता है वो एक्चुअली वहाँ पर सीज हो जाता है. टेम्परेचर एट विच ऑयल सीजेस टू फ्लो, सॉरी, पावर पॉइंट की डेफिनेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये तो सीज कर रहा है ना ऑयल सीजेस टू फ्लो. तो इसका मतलब ये क्लाउड पॉइंट की डेफिनेशन है. सो ऑप्शन नंबर बी,
इट इज़ करेक्ट हियर। पोर पॉइंट में तो वो बहेगा, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, समझने में थोड़ी सी गलती कर दिए हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑयल सीजेस टू फ्लो, वो तो सीज हो रहा है ना, सीज हो रहा है, यानी कि फ्लो नहीं हो रहा है उसका। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्लाउड पॉइंट की ये डेफिनेशन है, एंड ऑप्शन नंबर बी क्लाउड पॉइंट, इट इज़ डेफिनेटली करेक्ट आंसर हियर। Okay, then after that, MCQ number 34, the example of solid lubricant is, solid lubricant का एग्जाम्पल सिर्फ फाइंड करना है, कितना आसान है। नंबर ए ग्रीस, नंबर ए इट इज़, बीच में ही फ़ोन आ गया है, कट कर देते हैं इसको, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए वहाँ पर जो था, ऑप्शन नंबर ए इट वाज ग्रीस, और फिर उसके बाद में और भी वहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली कौन सा पॉइंट एमसीक्यू था वो, लुब्रिकेशन, ओके, एमसीक्यू नंबर 34, ओके, एमसीक्यू नंबर 34 को पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ एमसीक्यू नंबर 34? ए ग्रीस, ये तो सेमी सॉलिड है। बी वैसलिन, ये भी सेमी सॉलिड है। कैस्टर ऑयल, ये लिक्विड है। डी टाल्क, हमें पता है टाल्क ये सॉलिड लुब्रिकेंट है। सो ऑप्शन नंबर डी टाल्क, इट इज़ करेक्ट आंसर हियर। टाल्क पाउडर, टाल्कम पाउडर जो हम लगाते हैं ना, टाल्क, तो वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देन आफ्टर दैट MCQ नंबर 35, सो रिपीटेबल यूनिट ऑफ पॉलीमर, रिपीटेबल यूनिट यानी कि जो बार बार रिपीट होता है, लिंक होता है एक दूसरे के साथ में, वो कौन सा है? नंबर ए आइसोमर, बी कोपॉलीमर, सी होमोपॉलीमर, डी मोनोमर। तो हमें पता है मोनोमर्स एक्चुअली दे आर रिपीटेड एंड दे आर linked with each other by repeating itself to form a polymer. So that's why option number D, polymer, here it is the correct answer for MCQ number 35. Okay, then after that MCQ number 36, so turpentine oil in paint is used as, ये तो हमें पता है ना, turpentine oil in paint it is used as number A pigment, number B film forming pigment, C thinner, and D dryer. So it is very simple question and a simple answer for the question, simple question. So option number C thinner, it is correct. We know that thinner, turpentine oil, sorry, it is an example of thinner. Okay, so option number C, it is correct answer for MCQ number 36. Then after that MCQ number 37, lubrication is necessary to protect wear and tear caused due to, तो लुब्रिकेशन जो है ये नेसेसरी है, जो कि ख़राब हो रहे हैं मेटल के सरफेसेस, किसकी वजह से ख़राब हो रहे हैं, तो उसको हमें यहाँ पर ढूंढना है। सो ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से हो रहे हैं क्या, बी ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से, या फिर सी फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर डी मैग्नेटिक फोर्स। तो लुब्रिकेशन जो प्रोसेस है वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से सरफेसेस ख़राब होते हैं, और इसकी वजह से ही हमें वहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल या लुब्रिकेंट लगाने पड़ते हैं मेटेलिक पार्ट्स के बीच में। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज़ करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQ नंबर 37. Then after that MCQ number 38, select the incorrect statement from the following options. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से। ऑप्शन नंबर ए लुब्रिकेंट कीप आउट डर्ट, लुब्रिकेंट जो होता है वो जो डर्ट है उसको साइड में रखता है। बी लुब्रिकेंट एक्ट्स एज सील, सील की तरह काम करता है क्या। सी लुब्रिकेंट ट्रांसमिट फ्लूइड पावर, जो फ्लूइड पावर होता है क्या उसको ट्रांसमिट करता है क्या। या डी लुब्रिकेंट एनहांसेस करोजन, इन करोजन को एनहांस करता है क्या। सो एक्चुअली देखिए जो लुब्रिकेंट होता है वो नंबर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, लुब्रिकेंट ट्रांसमिट फ्लूइड पावर। ओके, जो फ्लूइड पावर होता है उसको ट्रांसमिट कर देता है ना लुब्रिकेंट। सो ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ करेक्ट फॉर MCQ नंबर 38. ओके, सो देन आफ्टर दैट लेट अस सी ऑप्शन MCQ नंबर 39, द विस्कोसिटी ऑफ पेट्रोलियम ऑयल फॉर हाइड्रोलिक लिफ्ट्स इज़, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक यानी कि वाटर का जो पावर होता है उसका यूज़ करके जो भी लिफ्ट किया जाता है जिस किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पर पेट्रोलियम ऑयल एज अ लुब्रिकेंट यूज़ किए जाते हैं। तो उनकी जो विस्कोसिटी होती है पेट्रोलियम ऑयल की, सो दैट विस्कोसिटी इज़ नंबर ए हाई, बी लो, मॉडरेट,
और नंबर डी वेरी हाई। तो देखिए विस्कोसिटी जो होती है पेट्रोलियम ऑयल की, जो कि यूज़ किए जाते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट्स के लिए, सो एक्चुअली इट इज़ लो। सो ऑप्शन नंबर बी it is correct answer here, because already there is hydraulic power, so that's why whatever petroleum oil we use, so petroleum oil obviously they have low viscosity, so that's why here option number B low, it is the correct option here for MCQ number 39. Then after that number 40, on increasing the lubrication the efficiency of machine, यानी कि lubrication अगर हम बढ़ाते हैं तो मशीन की जो इफ़िशियंसी है, जो उसकी परिणाम कारकता है, वो क्या हो जाती है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नंबर ए इंक्रीज़ होती है क्या, बी डिक्रीज़ होती है क्या, या सी रिमेन सेम वैसी ही रहती है क्या, कोई भी बदल नहीं होता है क्या उसमें, या डी डज़ नॉट गेट अफेक्टेड, कुछ भी उस पर उसके ऊपर कोई परिणाम नहीं होता है क्या। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इट इंक्रीजेस ये करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है लुब्रिकेशन अगर होगा अच्छी तरह से वहाँ पर उसको इंक्रीज़ किया जाएगा तो जो इफ़िशियंसी होगी मशीन की वो बढ़ेगी। सो ऑप्शन नंबर ए